struggle means they have the Kisan, in spite of all difficulties, all atrocities, all sort of government action against them, cases, police, charge, firing, even son of a minister firing at the agitators. But the Kisan, they never bent. They continued their struggle. And that struggle has come successful. Successful means only to one extent, that the government agrees to withdraw the law. That was a primary slogan which they raised. Primary slogan is agreed. But we have to analyze, when the government agrees to withdraw the law, what is in their mind. This is a government which is not having any humanitarian consideration, any consideration for the people, either to the Kisan or the working class or to the general people. Their interest is only to cater the needs of the corporates. And for the interest of the corporates, they will go, how long they can go, they will go in the name of development. They say that it is in for the purpose of development. So that one step backward body is taking, is it a ruse to jump with two steps further? This has to be assessed and calculated. We can, of course, congratulate the Kisan who stood firmly and continued the struggle in all odds, against all difficulties, against all atrocities, all torture and everything they fought. And that is a struggle which is a model for everyone. Perhaps the JP struggle against corruption. Take it for example, if the opposition parties, one party or two party have come forward and they have changed it as a political struggle, what would have been the result? The government would have thrashed it, and they would have told that this is led by a political party which was in power, who did this and that and this, and finally there would have been difference of opinion. And the leaders of the Kisan agitation kept the struggle as an independent Kisan movement, and where they wanted only the workers to join with them and the people to join with them without the party involvement. Hijacking a struggle is always the method of certain political parties, especially the communist parties. When they involve in struggle, in my experience is that ultimately the winner is the party. But in this struggle, they were able to tag even the left parties, the communist parties, but not as communists, but as Kisans. Socialists involved it very well. Our party involved in the struggle with full mind. It is not for the sake of exploiting the situation in a struggle, but for the real cause of the Kisan. And the real cause was that to get these laws withdrawn, the Kisans are recognized in India as the majority, the population, and laws are brought for their benefit, not for the benefit of third parties those who can invest money and purchase land and set out the people from their abodes. Very well, the leaders have to be congratulated. The people who have suffered have to be remembered. The martyrs have to be remembered, and in their memory, we have to build further struggle. The struggle is not yet over. Never think that this government has withdrawn the laws. The Kisan agitation is 100%. It is an announcement. Announcement made why? When we think of that, we find that UP elections are coming, Punjab elections are coming, other elections are coming in few states. I am not going to the details. But the purpose of withdrawing, giving an assurance by the Prime Minister is only to the extent that to win the election, what will be the next result? The next result will be, if they, by any chance, win in this election, either in UP or in Punjab or anywhere in the state, then Modi will say that the people have supported the government. I am bringing back the law. I will bring back the law. Now the people have given the mandate through the elections. Do you know the history of CEAA? All the laws which they have brought hitherto, the Kashmir annexure, the
everything which they declared in their election manifesto, they implemented one by one, telling that we have presented it in our election manifesto and people have accepted it. That was a CEA. Every issue you look, Amit Shah has a justification, Modi has a justification. We have got sanctions from the people. Now they will say, Kisan were agitating for long, and since the agitation was creating difficulties, and people were stuck and they could not move further, and in that context, we have decided to withdraw tactically. This is only a tactics. We are bringing more harsh law, and they will bring more harsh law if they win. Amarendra is mistaken. He offered some adjustment in Punjab with BJP. Suppose something happens, Amarendra's move is a calculative move. Modi's move is a calculative move. Amarendra is only thirsty for power politics. And if he is thirsty to become again a chief minister or something like that, and at the cost of the workers, if he gets it and he agrees Modi to bring the law once again, if they get the majority anywhere, they will bring it and they will say that we have got the backing of the people and we are re-enacting the laws. So the struggle are not over. The struggle is to continue. The struggle is to continue till this government is defeated totally. This government, the BJP should have an occasion to see that a BJP government is not coming forth. I congratulate really the Kisan leaders. They took that slogan very well in their heart. They started that slogan saying that this is a moment to join all parties together, to join all workers together, to join all Kisan together and stand fight in this at this time in the background of the Kisan agitation. So UP elections are on the cards. The UP elections, we should see that the same thing what happened in West Bengal is to take place in UP. Same thing in Punjab. In all the 5 states where elections are being held, it should be the aim that this agitation will become successful only if from all the 5 states BJP is ruled out. So the struggle is not over. The struggle is continuing. And the Socialist Party, our party, should pave way for that. And our idea is to form such a unity of all the parties, all the people, but with a socialist content ultimately. Because socialism is the base of our nation's slogan. Our constitution, it in its preamble says India is a socialist country. Our freedom was only to establish a socialist country. So that Socialist Party has got a duty, whether they are strong enough or not, or whether it is working everywhere or not. We have called one slogan, we have given one slogan that defeat BJP and bring an alternate, one bedel to BJP as early as possible. Of course, JP's call was that, but JP's call was against corruption only. The basic thing was not there. Therefore, ultimately results could not come. Some people who joined it took advantage of JP's movement. BJP took the advantage of JP's movement. So JP's movement started with that, and there we have done a great mistake that we decided to dissolve the Socialist Party. If Socialist Party was alive, and ultimately the socialist slogans were spread at the time of JP's movement, the Janata Dal or various fractions which happened after Janata Dal and BJP formation and all such things would not have happened. We failed in that. Here we shall not fail. Kisan struggle has shown the way. They have united the people. The unity of the people in the outlook of bringing a new government for making few comrades the MPs and MLAs and then get a bad name
it is for making this country a socialist country, making the workers, making the Kisans equal to everybody and work for them. And with that aim, the Kisan movement has given us a lesson. So the lesson which we take is that unity of all political forces to defeat BJP. And one part we have succeeded, that the Kisans have proved that they could make kneel the government which was adamant against them, and they could win. And now we have to see that the agitation is continued. And what happened in Bengal, West Bengal, Mamata never expected this much of victory. It is only because of the Kisan movement. Now UP also same thing. The Mahapanchayat will continue. We'll have to continue. And we'll have to give the slogan that Yogi will be thrown out. Punjab, if Amarendra is doing and cheating the people after having been in front of the struggle and thereafter making a unity with the BJP, then Amarendra Singh also will have to be given his way in what manner he has to go. In every state that should take place. So our aim, though we are small, our aim and objects are very perfect and correct, and we move forward that for the unity of all forces now exist force in fact and bring in as a sole destination in the and for that let us work with the Hindus and movement. That is only my request, and we will work for that. Our party is in that way move for in January 9, on January 9, I hope will bring some results. And if we are able to bring people from various parts of the country and make and give this slogan proved by all of them, including the Kisan leaders, regional leaders, including all other party leaders, interested the people, those who are interested in the people and those who want to unite the people, we want to have personal for becoming the environmentalist, this for the nation. So Kisans have shown खेती प्रधान देश है। खेती में ज्यादातर आबादी है और किसानों की हालत बहुत ही अच्छी नहीं रही है। पिछले समय से देख रहे हैं कि हमने देखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हर समय पर किसान वहां धरना देते रहते हैं। उड़ीसा के किसान मैंने देखा है अपने वस्त्र उतार कर अपने खोपड़ियों के हार बनाकर वहां बैठे हैं। और पंजाब में देखें तो पंजाब में भी किसान खुदकुशियां, किसान सुसाइड सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारी हालात पहले से बहुत अच्छी नहीं है। खेती के लिए एमएसपी की जो बात करते हैं हम, तो उसका लागत मूल्य है जो स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। हमारी लड़ाई तो वो थी कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को सरकार लागू करे। सरकार का एक कमीशन था जो सरकार ने बनाया था और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके मुताबिक उसकी लागत के अनुसार उसकी आमदन पैदा करने की बात हम कर रहे थे। मगर पिछले हमने 1.5 साल से देखा है कि जब से इन्होंने कानून बनाने के लिए जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया पहले, उस समय से पंजाब में चर्चा पहले होने लगी और उसके बाद 1 साल से हम दिल्ली 25 नवंबर को 1 साल हो जाएगा और पंजाब पहला राज्य था जो इन कानूनों के लिए, इन काले कानूनों को, मैं बात करूं काले कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ और पंजाब ने अगुवाई करी इस आंदोलन की। उसके बाद हरियाणा और राजस्थान और यूपी कहाँ गए, वहां से बड़ी तादाद में लोग आए और दुनिया भर में
जहां भी किसान है इस आंदोलन की आवाज गई और दुनिया भर के लोग इस किसान आंदोलन की हमायत में आए और इतना बड़ा आंदोलन शायद इस सदी में कभी नहीं हुआ होगा और इतनी बड़ी लड़ाई ये किसानों ने अपने आंदोलन के लिए लड़ी। और अब बात आती है कि प्रधानमंत्री ने इनको वापस कर लिया और इसकी अनाउंसमेंट कर दी। इसका सभी जो किसान जथेबंदी है उनने स्वागत किया, मगर जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास करने की, उन पर विश्वास किया जाए, ये विश्वासहीनता हमारे सारी पब्लिक में है कि उन पर उनकी कही बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री का कहा है बात कानून होता है, मगर हमारे देश में ये हमने देख लिया है पिछले समय से कि बीजेपी पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं और उनके गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी, कल उनकी बात आज अखबारों में लगी है। उन्होंने कहा कि हम लोड़ पई तो हम वापस कानून को लाएंगे। तो इतना देख लो कि एक प्रधानमंत्री उसी पार्टी का कह रहे हैं कि हम इनको काले कानूनों को वापस ले लिया, और एक गवर्नर साहब हैं जहाँ बीजेपी के और बड़े लीडर हैं वो भी बातें कर रहे हैं कि लोड पई से आगे यूपी इलेक्शन के बाद हम फिर कानून लाएंगे। तो इन पर विश्वास कैसे किया जाए? तो पंजाब ने तो पहले देखा है, पंजाब के साथ बड़ा लंबे समय से धोखा हो रहा है। जब से राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ था पंजाब में और स्टेटों को बद अधिकार देने की बात हुआ करती थी और समझौता हुआ तो पंजाब का आज तक वो समझौता लागू नहीं हुआ। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ समझौता हुआ था और आज भी भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ये कानून वापस ले लेंगे। तो इसीलिए किसान वहां डटे हुए हैं कि जब तक ये काले कानून जिस तरह ये कानून बनाए हैं उसी तरह ये वापस नहीं करते, रिपील नहीं होते, तब तक हम जहां से उठने वाले नहीं है। नंबर 2 बात है एमएसपी की। और देखो पहले से पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों में ये एमएसपी लागू थी कुछ फसलों पे तो 23 फसलों पे ये एमएसपी लागू होती है। पंजाब इंडिया सरकार देती है, हर साल देती है। कोई 20 रुपये बता दिए, किसी कभी 50 रुपये बता दिए, पर उसकी गारंटी कोई नहीं है। और पंजाब में जरूर हम कह सकते हैं, पंजाब हरियाणा में जे एमएसपी पर उठाई जाती है, कणक और चावल 2 फसलें जो है वो उठाई जाती है। अगर पंजाब में देखे तो चावल पैदा करता है तो कुछ ना कुछ आमदन होती है। और इसके लिए जो पंजाब 5 दरियाओं की धरती सी अभी 3 रह गए हैं, उस पंजाब में अब पानी समाप्त होने लगा है, धरती का हेठला पानी समाप्त होने लगा। हम भी चाहते हैं कि फसलों की विभिन्नता आए, फसलों हम और फसलें बीजे, उसका समर्थन मूल्य जो है एमएसपी लागू की जाए और हम चावल से निकालकर अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने पानी को बचाने के लिए हम और फसलें बीजे और उनकी आमदन है जो उससे हम अपना गुजारा चला सके। एमएसपी की गारंटी के बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये मैं आज बात कहता हूं। और ये जथेबंदियां भी किसान जो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, सभी की एक बात है भी कि एमएसपी की गारंटी देंगे तो हम उठेंगे। और बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि अभी तो प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, अभी क्यों नहीं उठते? उनको ये बात है कि भी जब हमने बोल दिया तो किसान अपना ट्रैक्टर लेकर वापस पंजाब में चले जाएंगे। और हम इस आंदोलन की तरफ से कल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, सारे देश का आंदोलन है। और आज आपके माध्यम से हम कहते जा देशवासी और सभी किसानों को, सभी राज्य के किसानों को कहते हैं कि आपके लिए भी ये बड़ा
जरूरी समा है कि आप आज सभी लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए और सभी राज्यों में, पंजाब हरियाणा में जो पहले से चल रही है, सभी राज्यों में एमएसपी की गारंटी कानून लागू हो और जथेबंदियों के साथ दोबारा बातचीत हो और इससे जो पार्लियामेंट से कानून वापस लिए जाए और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए और उसके बाद ही आंदोलन समाप्त होगा, जहां से वापस अपने अपने गांव की ओर चलें। देखो, बड़ा बड़ा नुकसान हमने वहां झेला है। आंदोलन करना कोई छोटा काम नहीं है, आंदोलन करना बहुत बड़ा काम है और लाखों लोग पंजाब के हर गांव से, हर शहर से सभी लोगों ने इसका साथ दिया है। विदेशों में बैठे लोगों ने भी, पंजाब के जहां भी लोग बैठे थे, और मैं तो देखा है कि अमेरिका के किसानों ने भी इस आंदोलन के हक में अपनी आवाज वहां बुलंद की है। सो ये सभी लोगों का आंदोलन है और सभी दुनिया भर के किसानों का आंदोलन है और इसकी जीत है जो सभी लोगों की जीत होगी। तो सभी लोग रलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अभी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। 25 तारीख को दोबारा जो किसानों ने वहां जथेबंदियों ने सद्दा दिया है, पंजाब की ओर से बड़े बड़े जो सालगिरह भी मनाई जा रही है वहां आंदोलन की, और ट्रालियां ट्रैक्टर लेकर पूरी तैयारी से लोग फिर दिल्ली की ओर चल रहे हैं। और जो ट्रैक्टरों से दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन चलना है, वहां भी जो थोड़े 500 लोगों के जथे वहां जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि इसके साथ जो और बातें जुड़ी हुई है, जो आमदनी पैदा करना चाहती है, या कारपोरेट घरानों के कहने पर आपने कानून लाए थी, अब आप यूपी और में हार रहे हैं। यूपी में, पंजाब में तो बीजेपी के कोई वर्कर भी नहीं निकल सकता बाहर और लीडर भी नहीं निकल सकते। वो भी निकलते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं, काली झंडी दिखाते हैं। उनके बाईबाल जो पार्टियां थी, अकाली दल वगैरह, उनका भी विरोध हो रहा है। वैसे सारियां पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध किसान कर रहे हैं। सो इसके लिए ही इन्होंने कानून वापस लिए हैं कि इनका बुरा हाल यूपी में भी होना है, उत्तराखंड में भी होना है, पंजाब में भी होना है। सो अभी लड़ाई जारी रहेगी। सोशलिस्ट पार्टी पंजाब में अपनी भूमिका निभा रही है और मैं आशा करता हूं कि देश के वक्-वक् भागों से जो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस आंदोलन में और किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद। 161 दिन आज हो गए हैं पूरे। आज ही किसान संघ जो संयुक्त मोर्चा है उसने जो लखनऊ में घोषणा की है कि एमएसपी मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अभी मनसैया जी कह रहे थे कि पंजाब में और हरियाणा में एमएसपी मिलती है, एमएसपी मध्य प्रदेश में भी लागू है, लेकिन जो इस स्थिति में आज एमएसपी है वह एमएसपी होना नहीं होना बराबर है। 1925 रुपए 1925 रुपए एमएसपी है गेहूं की मध्य प्रदेश में और 100 रुपए बोनस के, लेकिन गेहूं बिक रहा है मंडी में 1500 और 1600 रुपए क्विंटल। मक्का की एमएसपी है 1850 रुपए, लेकिन बिक रही है 1200 रुपए, 800 रुपए से लेके 1200 रुपए। इस तरह से हर चीज, चाहे कपास हो, चाहे बाजरा हो, चाहे बाजरे की तो अभी गारंटी नहीं एमएसपी पे खरीदने के, लेके बाजरा पड़ा हुआ है लोगों के पास। तो हर चीज में तो एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा है कि एमएसपी C+2 प्लस 50%, मतलब 1.5 गुनी, C+2 से 1.5 गुनी एमएसपी तय होना चाहिए और जो व्यापारी एमएसपी से कम में खरीदी करे उसके स्थान जेल होना चाहिए। यह संयुक्त किसान मोर्चे की भी मांग है और समाजवादियों की भी मांग है, सोशलिस्टों की भी मांग है। सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई है पिछले 1 साल के आंदोलन में।
मध्य प्रदेश में भी हमने, चाहे बालाघाट हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे इंदौर रहा हो, जहां जहां हमारी इकाइयां थी, सभी साथियों ने इस आंदोलन में पूरी ताकत से और पूरी सद्भावना के साथ में इस संघर्ष में भागीदारी की है। हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग, जुड़े हुए लोग हों, चाहे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हों, सभी ने इस आंदोलन में भूमिका निभाई। और समाजवादी ही, जो समाजवादी विचार है, समाजवादी संघर्ष के जो सिपाही रहे हैं, वो ही आंदोलन को गति तक ले जाते हैं। पहला आंदोलन हुआ है देश में जिसमें गांधी जीता है और गोडसे हारा है। जो गोडसे के अनुयायी सत्ता में बैठे हुए थे, वो लगातार इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी एक इसलिए नहीं चली कि जो रास्ता एक संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनाया वो गांधीवादी रास्ता था। गांधीवादी रास्ते ने गोडसेवादी रास्ते को हराया, सांप्रदायवाद को हराया, जातियों में लड़ाने की कोशिश हुई, खालिस्तान का आरोप लगाया गया, विदेशी पैसे का आरोप लगाया गया, कभी पहनावे पे, किसानों के पहनावे पे आरोप लगाया गया, कभी कह रहे थे कि ये तो यहाँ पार्टी कर रहे हैं, कभी कहते थे किसान है ही नहीं इनमें। तो ये सारे आरोप लगाने के बावजूद आखिरकार तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़े। और जैसा कि अब लड़ाई है आगे की, एमएसपी की भी है, मैं लगातार कहता रहा हूं कि यह किसान आंदोलन केवल 3 कृषि कानून वाला नहीं रहा है। यह आंदोलन किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन बन गया है। और अब जो लड़ाई होगी वह मान, सम्मान और स्वाभिमान की होगी। किसान और मजदूर पहली बार एक आए हैं, जाति के खाके में बांधने की कोशिश हुई है वो सारी टूटी है। इसलिए यह जो आंदोलन है यह नया इतिहास बनाएगा। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, उत्तराखंड के हों, गोवा के हों, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। एक यह भी कारण हुआ है कि मोदी ने अलोकतांत्रिक तरीके से जैसे बिल लाए थे, उसी अलोकतांत्रिक तरीके से इनको वापस लेने की घोषणा की है। कैबिनेट में बैठक हुए बगैर, कैबिनेट में बात हुए बगैर, नरेंद्र सिंह तोमर, उनको भी मालूम बिल वापस लेने की असमंजस में है भारतीय जनता पार्टी। और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे किसानों पे, उनकी बोलती बंद हो गई है। तो इसलिए इस सरकार को, तो अब इस सरकार के ऊपर से, जैसा कि मनसैया जी ने कहा कि भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए किसान अड़े हुए हैं। और 29 तारीख से लगातार संसद पर जाएंगे, भले ही प्रतीक स्वरूप 500 किसान जाएं, लेकिन जाएंगे और बिल को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। उसी के साथ एमएसपी की लड़ाई भी लड़ेंगे। 26 तारीख को जो देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया गया है जिलों में, मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जिलों के अंदर प्रदर्शन होगा। किसानों के साथ एकजुटता दी जाएगी। और तमाम जो श्रम संगठन हैं, जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें एचएमएस भी शामिल है, वो सारी ट्रेड यूनियन के लोग भी 26 तारीख को संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत इन प्रदर्शनों में शरीक होंगे। हम भी शरीक होंगे। सोशलिस्ट पार्टी का तो मेरा केंद्रीय नेतृत्व से, थम्पन थॉमस जी से और संदीप पांडे जी से आग्रह है कि सोशलिस्ट पार्टी को इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1950 के आसपास मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन से ही किसान पंचायत का गठन किया था डॉक्टर लोहिया ने। और तभी एक हरावल दस्ते के रूप में सोशलिस्टों को गांव-गांव में पहुंचाने का काम किसान पंचायत ने किया था। और विंध्य में जो बड़ा किसान आंदोलन हुआ डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसने मध्य प्रदेश में जमीन बनाई थी सोशलिस्टों की। तो इसी तरह की भूमिका हमें उत्तर प्रदेश में भी निभाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही हम प्रतीक स्वरूप लड़ें, लेकिन इस किसान आंदोलन को अगर हम तेजी से बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जहां पर लड़ेंगे वहां पर हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हम निर्णायक स्थिति में बनेंगे, यही मेरा कहना है। और सभी साथियों से, सोशलिस्ट पार्टी के सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि किसान आंदोलन हो या मजदूर आंदोलन, क्योंकि यही हमारी पार्टी को बना सकते हैं। इन्हीं आंदोलनों में हमारी भूमिका होना चाहिए, इन आंदोलनों में हमें नेतृत्व करना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।